آج کی اس مختصر سی ساعت میں نے موضوع یہ اٹھایا ہے کہ رشتہ داری کو ختم نہ کرے۔ آج گھر گھر آج کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسے فیملی، کوئی ایسا پریوار، کوئی ایسا خاندان نہیں جہاں کچھ نہ کچھ اختلافات نہ ہو۔ کہیں بھائی بھائی میں نہیں بنتی، کہیں باپ بیٹے میں نہیں بنتی، کہیں ماں بیٹی سے نہیں بنتی، بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی، کہیں ساس نند کا، کہیں ساس اور بہو کا جھگڑا ہے تو کہیں بہو اپنی ساس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ سارے معاملات آج ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنے بھتیجے سے نفرت کر رہا ہے، کوئی مقدمے بازی کر رہا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، آج کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے آپسی تعلقات کا ایک بہترین رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو رشتہ داری کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس کو رحم کہا گیا۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کو ہم انگلش میں ومب کہتے ہیں، WOMB، ومب، جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو خاندان قبیلے ہیں، یہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنائے۔ ہم نے نہیں چاہا کہ ہم کسی کے باپ بن جائے، باپ بن گئے۔ ہم نے نہیں چاہا کہ کسی کے بھائی بن جائے تو ہم بھائی بن گئے۔ اللہ نے آپ کو کسی کا باپ بنایا، اللہ نے آپ کو کسی کا بھائی بنایا، اللہ نے آپ کو کسی کا دادا بنایا، اللہ نے آپ کو کسی کا نانا بنایا، اللہ نے آپ کو کسی کی ماں بنائی، اللہ نے آپ کو کسی کی دادی بنائی، کسی کی نانی بنائی۔ ہم نے نہیں، یہ بائی چوائس رشتہ نہیں ہے، ہم نے نہیں چوز کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوز کیا۔ اللہ نے بنایا ہے کہ آپ کس کے باپ رہیں گے، آپ کس کے بیٹے رہیں گے، آپ کس کے بھتیجے رہیں گے، آپ کس کے ماما رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے بارے میں قرآن کریم کا کیا رسپانس ہے، قرآن کیا کہتا ہے، آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رشتہ کو کاٹتے ہیں، رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ داری سے تعلق، رشتہ ناتا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے جس کو ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، غالباً کسی کو، بلکہ یہ کہہ لیجیے اکثر لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی ہوگی۔ ہر خطیب اپنے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ او لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس رب کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ جب اللہ کا نام لے کر کوئی ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب اللہ کا نام لے کر کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اس کو بھگاتے نہیں ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والارحام، رشتہ کو توڑنے سے ڈرو، رشتہ کو کاٹنے سے ڈرو۔ یہ رشتہ کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں، یہ رب نے بنایا ہے۔ جس رشتے کو اللہ نے بنایا ہے اس رشتے کو ہم اور آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یقیناً اگر کوئی شخص رشتے داری کا تعلق، رشتے داری کو کاٹتا ہے، رشتہ ختم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین نگہبان ہے، نگراں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ اللہ بہت رقیب ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم نے کوئی رشتہ توڑا، اگر ہم نے اپنے ماں سے رشتہ توڑ لیا، اگر ہم نے اپنے باپ سے رشتہ توڑ لیا، اگر ہم نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیا، اگر ہم نے اپنے بھتیجے سے رشتہ توڑ لیا، کل قیامت کے دن اس رشتے کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے کسی کا باپ بنایا تھا، میں نے تجھے کسی کی ماں بنایا تھا، میں نے کسی کی تجھے بہو بنایا تھا، تو اپنی سانس سے یہ رشتہ کیسے ختم کر سکتی ہے؟ یہ رشتہ کیسے تم نے، یہ تعلق، یہ رشتے، یہ ناطے تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہوگا۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ ہائے ہائے،
صحابہ کا کیا حال، صحابہ کا کیا حال تھا جب قیامت کا ذکر ہوتا تھا۔ آپ کے درس کے اندر عشاء کا جو درس ہوتا ہے اس میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر رسول پر چلتے ہیں، فقام علی ممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، وذکر الساعۃ، اور قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھیں گے قیامت سے پہلے پہلے، قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک میں ممبر پر کھڑا ہوں آپ مجھ سے جو چاہو سوال کرو، جو چاہو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے ہیں فَأَكْثَرُ النَّاسِ يَبْكِي، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، لوگ داروں قطار رونے لگتے ہیں، لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، صحابہ رونے لگتے ہیں، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس قیامت کے دن کے بارے میں ذرا سوچے جس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ صرف عام انسان نہیں، صرف عام آدمی نہیں، انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، اس دن یہ کہیں گے ہم اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب ہو جائے، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہ کہے گا کہ جلدی سے حساب کتاب ہو جائے۔ چنانچہ اسی حساب کے تعلق، اسی حساب کے لیے سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم آپ تو ابو البشر ہیں، آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کی اتنی تکریم اتنی عزت کی کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا آپ کا، اے آدم اے آدم اے ابو البشر آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آج یہ جو نفسی نفسی کا عالم ہے، یہ جو مصیبت یہ پریشانی ہے، اسے اللہ ہمیں نکال دے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا، میں اس قابل نہیں، بہت لمبی حدیث ہے میں شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس قابل نہیں، میں دنیا میں نے جنت میں ایک خطا کیا، ایک گناہ کیا، اللہ نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا جس درخت کا میں نے پھل کھا لیا تھا، میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں۔ لیکن نوح، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ تو 950 سال تک دین میں اللہ کی تبلیغ کے لیے کام کرتے رہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، فیاتون، سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں، میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں کہ اللہ سے تمہاری سفارش کروں، آج میرا رب جتنا غصے میں ہے، آج میرا رب جتنا ناراض ہے، کبھی نفع نہ ہوگا، آج میں نہیں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا، لست لہا، میں اس قابل نہیں۔ چنانچہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سارے کے سارے انسان ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اور کہیں گے لیکن نبی موسیٰ، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، تب سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے لست لہا، میں اس قابل نہیں، کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے انسان جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اور کہیں گے تم محمد کے پاس چلے جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے ابن آدم جتنے ہوں گے سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، لست لہا، میں اس قابل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کہیں گے میں تمہارے کام آؤں گا، آج کے دن میں تمہارے کام آؤں گا۔ ہائے ہائے، قربان جائیے اس نبی کے اوپر جو دنیا میں اپنی امتی کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا تھا، اللہم امتی اللہم امتی، وہ نبی اور قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے روئے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور دعا کریں گے اور اللہ کی ایسی حمد ایسی تعریف کریں گے جو کبھی آج تک کسی نے کیا نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے حمد بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ رب العالمین جواب دے گا ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، قل یسمع، آپ کہیے آج سنا جائے گا، آپ جو کہیں گے اس کو سنا جائے گا، سل تو آپ مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، اے میرے حبیب آج کے دن آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے یا رب امتی امتی
उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत के लिए रोएंगे। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर। हमारे माँ बाप कुर्बान, जो दुनिया के लिए भी, अपनी उम्मत के लिए दुनिया में भी रोए, और क़यामत के दिन भी वही काम आएगा, जहां सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपना दामन झाड़ लेंगे, कहेंगे आज हम इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि अपने रब से बात करें। वहां पर भी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे काम आएंगे, वो अल्लाह से दुआएं करेंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, बल्कि 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ये जवाब देगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मुस्लिम के अल्फाज है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करके पारी ढूंढे, के पुल सिरात को लाया जाएगा, रखा जाएगा। पुल सिरात क्या चीज है? पुल सिरात को रखा जाएगा, और जैसे पुल सिरात रखा जाएगा, वतुरसलुल अमानतु वर्रहमु, 2 चीजें आके पुल सिरात के आजू बाजू खड़े हो जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड, दाएं बाएं पुल सिरात के 2 चीजें खड़ी हो जाएंगी। एक वो चीज होगी अल अमानत, अमानत, और दूसरी रिश्तेदारी, वर्रहिमु, रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी। और अमानत ये कहेगी तूने दुनिया में अमानतदार नहीं था, तो दुनिया में अमीन नहीं था, तूने दुनिया में मेरा हक नहीं अदा किया था, इसलिए आज कोई इस पुल सिरात से गुजर नहीं पाएगा, इस पुल सिरात से कट कर गिर जाएगा। और रिश्तेदारी ये कहेगी तूने दुनिया में मुझको खत्म कर दिया, तूने दुनिया में रिश्ता काटा, दुनिया में तुझे किसी का भाई बनाया गया था, तूने उसके ताल्लुक खत्म कर लिया, तू उसके रिश्ता खत्म कर लिया। दुनिया में किसी को तेरी माँ बनाया था, तूने उससे रिश्ता खत्म कर लिया। दुनिया में अल्लाह ने तुझे किसी का बेटा बनाया था, तूने अपने बाप से रिश्ता खत्म कर लिया, तूने अपने बाप से ताल्लुक खत्म कर लिया, तूने अपने खानदान, अपने कबीले से रिश्तेदारी और ताल्लुकात को खत्म कर लिया, काट लिया। आज तू उस पुल सिरात के चक्कर गिर जाएगा। हाय हाय, उस पुल सिरात के ऊपर वो पुल सिरात जहां इर्द गिर्द जहां अमानत और ये खड़ी होंगी रिश्तेदारी, वहीं पर फरिश्तों की सफे भी होंगी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह इन लोगों को सही सलामत गुजार दे, इन लोगों को सही तालीम इस पुल सिरात को गुजार दे। हाय हाय, अफसोस आज हम पुल सिरात का नाम सुन के हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है, कयामत का नाम सुन के हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है, हमारा दिल हलचल नहीं हो रहा है, हमारा दिल मुतहर्रिक नहीं हो रहा है। हाय हाय, इस हदीस की रोशनी में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब पुल सिरात को रखेगा, पुल सिरात वो चीज है जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, और धार तलवार से ज्यादा तेज, तलवार की जो धार होती है उससे भी ज्यादा धार रहेगी उस पुल सिरात की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुल सिरात का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पुल सिरात क्या चीज है? आप कहते हैं एक कांटेदार रास्ता है, एक कांटेदार रास्ता है, और कांटा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मोटे मोटे कांटे होंगे और टेढ़ा कांटा होगा जो नजिद के अंदर सादान के नाम से जाना जाता है। एक नजिद के अंदर सादान नाम का एक कांटा है, मोटा और बिल्कुल टेढ़ा कांटा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो कांटा पुल सिरात के ऊपर होगा, और उस पुल सिरात के ऊपर मोमिन ऐसे पार होगा जैसे दुनिया में बिजली कड़कती है। बिजली को आपने देखा, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, ऐसे मोमिन उस पुल सिरात से पार हो जाएगा। और कुछ लोग तो उस पुल सिरात से हवाओं की तरफ पार होंगे, और कुछ लोग तो उस पुल सिरात से तेज घोड़े की रफ्तार पार होंगे, और कुछ लोग तेज दौड़ने की रफ्तार पार होंगे, और कुछ लोग चलकर पैदल अबूर करेंगे। और उसमें जो आखिरी सत्य होगा वो उसी पुल सिरात पर गिरता पड़ता घसीट कर उस पुल सिरात को पार करेगा। हाय हाय, अल्लाह उस पुल सिरात को हमें महफूज रख, अल्लाह उस पुल सिरात पर हमें हवा जैसे, बिजली जैसे, तेज घोड़े जैसे, तेज ऊंट की रफ्तार जैसे को हमें पार करा दे। अल्लाह को हम उस पुल सिरात से महफूज रख, उस पुल सिरात से हमारी हिफाजत और सेफ्टी कर। उसी पुल सिरात की बात हो रही है कि रिश्तेदारी आकर कहेगी कि आज आपने दुनिया में तूने मेरा रिश्ता काट दिया था, तूने दुनिया में इसकी अहमियत को नहीं समझा, आज तू इस दुनिया से कट जाएगा। जरा सोचे मेरे भाइयों, जो लोग ये समझते हैं
जो लोग ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में रह के हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तो ये जान लीजिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इस दुनिया में रहे, लोगों में मिलजुल कर रहे और आपको कोई तकलीफ न दे, आपको कोई ईजा न पहुंचाए। तो ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है मेरे भाइयों। तो आप अगर दुनिया में रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल मुमिनुल लज़ी युखातिबुन नास, कि जो लोगों में मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर रहता है, और उसके ऊपर जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी, लोगों की तरफ से तकलीफ होती है और वो उस तकलीफ पर बर्दाश्त करता है, तो वो शख्स उस शख्स से बेहतर है जो बंद कमरे के अंदर रहता है, लोगों से ताल्लुक नहीं रखता, लोगों से रिश्ता नहीं रखता, बंद कमरे के अंदर है और उस पर अगर कोई जो लोगों के दरमियान घुलकर रहता है, उसे कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उस शख्स से बेहतर है जो बंद कमरे में रहता है। भाई आपको तकलीफ होगी, आप बर्दाश्त करोगे, तब तो आप जानोगे रिश्तेदारी क्या चीज होती है, ताल्लुकात क्या चीज होते हैं। आप बंद कमरे में हो, आपको क्या मालूम। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई तकलीफ न दे, आपको कोई बुरा भला ना कहे, तो आप चले जाओ, जंगलों में जाके रहो, पहाड़ों पर जाके रहो, समुद्र के किनारे जाकर रहो, आप जाके ऐसी जगह रहो जहां कोई आबाद भी न हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये तकलीफ बर्दाश्त करना है तो आप अल्लाह तबारक व तआला से सीखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा बर्दाश्त और सब्र करने वाला है। ला अहद अकबर अज़न अला अज़न, जब अल्लाह को कोई मुसीबत, जब अल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचती है तो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त करता है। कैसे अल्लाह को तकलीफ पहुंचती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नहु युशरिक बी, जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह का किसी अल्लाह का कोई बेटा करार देता है, हाय हाय, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, कोई उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देता है, ये सारी चीजें अल्लाह को पहुंचती है और इतनी तकलीफ होती है कि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं या उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह कह रहा है कि गोया कि आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, ये इतनी बड़ी बात है, अल्लाह को कितनी तकलीफ होती है, फिर भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्मा युआतीहिम, अल्लाह उन्हें आफियत देता है, उन्हें दरगुजर करता है, व यरज़ुकुहुम, अल्लाह उनको रिज़्क देता है, अल्लाह उनको दुनिया के अंदर खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है। अल्लाह को इतना तकलीफ देने के बावजूद भी अल्लाह उन्हें जिला पिला रहा है, पिला रहा है। मेरे भाइयों, अगर कभी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह को याद करो। अल्लाह को कितनी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह बर्दाश्त करता है, अल्लाह दरगुजर करता है। आप क्या चाहते हैं अपने रब से? आप भी तो यही चाहेंगे ना कि अल्लाह हमें दरगुजर कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। जब अल्लाह से हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें दरगुजर कर दे, तो फिर हम बंदों से ये उम्मीद रखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर अरसे तक बोल चाल खत्म, बोल चाल बंद, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हम अपने बेटों को वसीयत कर देते हैं कि तू फला के खानदान में, फला के घर न जाना, फला के रिश्तेदारी में न जाना, उससे मेरी बनती नहीं। आय हाय, उस रिश्ता को क्यों तोड़ रहे हो? अल्लाह से क्या तवक्कुल रखते हो? अल्लाह से क्या तवक्कुल रखते हो कि अल्लाह हमें आफियत दे, अल्लाह हमें रिज़्क दे, अल्लाह हमें दरगुजर करे, अल्लाह हमें माफ कर दे। यही तो हम दुआएं करते हैं। रमजान का महीना आता है, शब कदर की रातों में हम यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू हमें अफ़्व कर दे, दरगुजर कर दे, अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है। हम यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। जब हम अपने रब से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें माफ कर दे, तो हम बंदों से क्यों नहीं ये उम्मीद रखते कि बंदे हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, तो हम भी बंदों को माफ कर दे। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मोमिन भाई है, वो हमारे मुसलमान भाई है, हमें उसको माफ कर दे, उसको दरगुजर कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को तकलीफ कोई पहुंचाया? मेरे नबी से ज्यादा किसी को कोई तकलीफ पहुंचाया? मेरे नबी से ज्यादा किसी को तकलीफ पहुंची है किसको? हाय हाय, उस नबी पे कुर्बान जाइए, वो नबी जिसके दिल में इंसानियत का सबसे बड़ा दर्द था, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ इंसानियत की जिस नबी के दिल में था, उस नबी को पागल कहा गया, उस नबी को मजनू कहा गया, उस नबी को दीवाना कहा गया, उस नबी को जादूगर कहा गया, उस नबी को शायर कहा गया, उस नबी को कज़्ज़ाब कहा गया, उस नबी को पत्थरों से मार मार कर संसार किया गया, उस नबी को लहू
इम्तिहान किया गया, उस नबी को आसमान से ऊपर से पत्थर गिराकर हलाक करने की कोशिश की गई, उस नबी को कत्ल करने की कोशिश की गई, उस नबी को जिनके ऊपर नमाज की हालत में गंदगी डालने की कोशिश की गई, उस नबी के गले को दबाने की कोशिश की गई, उस नबी के गोश्त में जहर मिलाकर दे दिया गया, उन्हें हलाक करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस नबी के बारे में क्या कहता है? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फस्फहिल सफहल जमील, ऐ मेरे हबीब तुम लोगों को दरगुजर कर दिया करो, और कोई ऐसा वैसा दरगुजर नहीं, कोई ऐसी वैसी माफी नहीं। फस्फहिल सफहल जमील, लोगों को खूबसूरती के साथ माफ कर दिया करो, खूबसूरती के साथ माफ कर दिया करो। इसका मतलब क्या होता है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कहा फस्फहिल सफहल जमील, खूबसूरती के साथ माफ करना, देखिए जहां माफी की बात आई अल्लाह ने कहा फस्फहिल सफहल जमील, और जहां सब्र की बात आती है अल्लाह कहता है फस्बिर सबरन जमीला, कि आप सब्र करो तो खूबसूरती के साथ सब्र करो, ऐसा सब्र करो जो अच्छा सब्र हो। तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके ऊपर रहमत नाज़िल करे, अल्लामा इब्न तैमिया नुक्ता रखते हैं, क्या नुक्ते की बात करते हैं कि खूबसूरती के साथ सब्र करना, कि आपके पास कोई तकलीफ, आपको कोई मुसीबत, कोई परेशानी लायक हुई, मिसाल के तौर पर आप बीमार हो गए, आपने सब्र किया, लेकिन सब्र करने के साथ साथ आपको ये शिकवा है, आपको ये शिकायत है, अल्लाह हमें को बीमार करना था, अल्लाह हमें को ये बीमारी देनी थी, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। फस्बिर सबरन जमीला, खूबसूरती और अच्छाई के साथ सब्र करो। इसी तरीके से खूबसूरती के साथ माफ करो, फस्बिर सबरन जमील, यानी आप किसी को माफ कर रहे हो तो भाई आपके साथ उसने क्या किया पीछे का सब भूल जाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होता है? उसका पूरा कच्चा पिट्ठा खोल दिया जाता है, उसने ये किया, प्याज के छिलके की तरफ उसकी पूरी पुरानी चार बातें जो होती है सब निकाल दी जाती है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये खूबसूरती के साथ माफी नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती के साथ माफ कर देते थे। फस्फहिल जमील, याद करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए, बादशाह मिस्र हुए, पूरा वाकया न बयान करके शाख में बयान करता हूँ। बादशाह मिस्र हुए, जब मिस्र के बादशाह हो गए, उस वक्त जब कहत पड़ा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पहुंचे अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास के तसद्दक़ना अलैना, हमारे ऊपर सदका करो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं ये तो मेरे भाई हैं, वो पहचान लेते हैं, और वो लोग अभी नहीं पहचानते। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, पहचान कराते हैं, तारीफ कराते हैं, तो वो लोग जानते हैं, वो कहते हैं, फौरन एतराफ करने लगते हैं, इन्ना कुन्ना मिनल खातिन, ऐ मेरे भाई हम तो खताकार हैं, गुनाहगार हैं, मेरे भाई हमने तो गलती कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को फौरन ये डर, ये खदशा होता है कहीं हमारा भाई हमसे इंतकाम न ले ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, चाहते तो बदला ले सकते थे। उनके भाइयों को पुरानी बातें सब याद आने लगी, हमने यूसुफ के साथ क्या क्या किया था, हमने यूसुफ को कुएं में डाला, हमने यूसुफ को मारने की कोशिश की, हमने यूसुफ की जान लेने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ला तसरीब अलैकुम अल-यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे भाइयों ला तसरीब, आज तुम्हें कोई मलामत नहीं, अलैकुम अल-यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई लान तान नहीं करेगा, कोई मलामत नहीं करेगा, कोई पीछे की बात नहीं दोहराएगा। अलैकुम अल-यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ करे, व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वाला माफ करने वाला है। माफ करो तो ऐसा माफ करो जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ किया, माफ करो तो ऐसा माफ करो जैसा कि कुरान ने अपने नबी से कहा फस्फहिल जमील, तो खूबसूरती के साथ माफ करो। आज कहाँ ऐसी कोई माफ करता है? आज हमारा रिश्ता कैसा है, आज हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? अगर हमें कोई शादी में इन्वाइट न करे हम ऐसे नाराज होते हैं, भाई तूने हमें बुलाया नहीं, हमें इन्वाइट नहीं किया, हम जिंदगी भर के लिए तुझसे रिश्ता नाता खत्म कर लेते हैं। ये कहाँ का इस्लाम है, ये कहाँ का दीन है? मेरे भाइयों, मेरे नबी को क्या क्या नहीं किया गया, फिर भी उसके साथ फस्फहिल जमील के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जरा सोचे फतह मक्का का मौका है, फतह मक्का के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एंट्री करते हैं, फतह होती है, तो सहाबा को ये गर्व होता है कि आज तो हम जीत गए हैं, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, आज हम बदला लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये था कि हम बदला ले लेंगे, और काफिर जो थे, मुनाफिक जो थे, वो डरे हुए थे कि आपको आज हमारी खैर नहीं। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही, वो कुफारे मक्का आपको कम तकलीफ पहुंचाए, 3
303 साल तक वो इसने अरशे में अभी तालीब में कैद करके रखा और वहां पे खाने को खाना नहीं मिल रहा था, चमड़े और क्या क्या चूसते हुए अपनी जिंदगी काट के 3 साल तक ये मामूली तकलीफ थी। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का से कहते हैं ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, मैं वही बात कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, जाओ आज के दिन तुम्हें माफ कर दिया गया। हाय हाय उस नबी पे कुर्बान जाइए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक छोटा सा वाकया पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि रिश्तेदारी कैसे होती है, लोगों से ताल्लुकात कैसे होते हैं, लोगों से ताल्लुकात कैसे कायम करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी कर दे तो कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए, अगर हमारे साथ कोई जानबूझ के गलत कर दे तो कैसे पेश आना चाहिए। एक आदमी आता है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में, खिदमत में हाजिर होता है, कहता है यब्नल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे तू अच्छे तरीके से इंसाफ नहीं करता। हाय हाय अमीरुल मोमिनीन से कह रहा है तू अच्छे से इंसाफ नहीं करता और तू हमें कुछ देता नहीं है। किससे कह रहा है? वो अमीरुल मोमिनीन जो रात की तन्हाइयों में निकलते कि कहीं मेरा कोई रियाया कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, उससे कह रहा है कि तू अपनी अच्छी से इंसाफ नहीं कर रहा है, तू लोगों को अच्छे से दे नहीं रहा है। उमर बिन खत्ताब गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, करीब है उमर बिन खत्ताब बदला ले ले। उसी महफिल में हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी मौजूद थे, वो खड़े होते हैं, फौरन कहते हैं ऐ उमर बिन खत्ताब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या ये बात नहीं कही, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, लोगों को माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से मुंह मोड़ लिया करो, जाहिलों से मुंह मोड़ लिया करो, इनहिराफ कर लिया करो, किनारा कशी हो जाओ। उमर बिन खत्ताब की कानों में जैसे कुरान की आयत करीमा पढ़ती है, कुरान की आयत करीमा सुनते हैं और उमर बिन खत्ताब ठंडे हो जाते हैं, हजरत उमर ठंडे हो जाते हैं। हजरत उमर की ये खुसूसियत थी, बुखारी के अल्फाज हैं वक़ाफ वक़ाफन किताबुल्लाह, कि जैसे ही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पेश कर दिया जाता, हदीस सामने आ जाती, कुरान के सामने वो खामोश हो जाते, चुप हो जाते, ठंडे हो जाते। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे नहीं कि आज हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, जोर जोर से शोर गुल हो रहा है, अगर कोई कह दे, आलिम दीन आपके बीच खड़ा होकर कह दे अल्लाह के बंदे ये मस्जिद अल्लाह का घर है, शोर नहीं करते, हम क्या कहते हैं, अरे मौलवी साहब पहले आप साइड हटो, ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ की शरीयत है। आज कोई शोर गुल कर रहा है, जोर से बोल रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, अगर उसके सामने कुरान हदीस पेश कर दी जाए तो उसको चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। आज रिश्तेदारी में हमारा मामला ये नहीं, आज रिश्तेदारी में हम क्या करते हैं, कहीं बनाने जाते हैं, कोई कुछ कहता है, उससे बनाना है, अनबन है, 4 दिन 4 साल 4 महीने से बिगाड़ कर नहीं, सोचते हैं चलो यार कितने दिन की जिंदगी है, चलो उनसे बना लेते हैं। वो क्या करता है, वो गुस्सा करता है कि आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ ये किया। ये मोमिन की सिफत नहीं, ये मोमिन की पहचान नहीं कि आप गुस्सा करो, नाराज करो और लोगों को माफ न करो। अल्लाह कुरान में कहता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, मोमिन की सिफत तो ये है कि गुस्से को पी जाता है, वो नाराज नहीं होता, गुस्सा आता गुस्से को पी जाता है, अपने आप को दबा लेता है, वल आफ़ीना अनिन नास, और वो लोगों को दरगुजर करता है, लोगों को माफ करता है। मेरे भाइयों आज की तकरीर का खुलासा यही है कि रिश्तेदारी को जोड़ो, रिश्ते को समझो, वरना कल कयामत के दिन कोई सिरात से आप गुजर नहीं पाएंगे और जहन्नम में कट कर गिर जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने सामने रखें, इसी बात हदीस को पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग, मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो लोग रिश्ता को काटते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाय हाय इस दुनिया के अंदर हम आए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रातों को उठकर दुआएं कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज को हिफाजत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद हम जन्नत में ना जाए, अपने भाई से नाराज है, अपनी बहन से नाराज है, कोई बहन से स्वाद से नाराज है कि बहन को हिस्सा नहीं, बहन को विरासत से तकसीम नहीं देनी होगी, विरासत से उसको महरूम कर दिया जाएगा। कोई भाई से दूर जा रहा है तो भाई को अपने हिस्से में हिस्सेदारी नहीं देनी होगी। कोई अपने बाप को अलग कर रहा है कि अब मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, अब बाप को इस लायक नहीं, कमाने के लायक नहीं, बाप को अलग कर रहा है। कोई अपनी माँ को अलग कर रहा है, कोई सास बहू से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। किसी की बहू वो कह रही है मेरा शौहर इतना कमा रहा है, अब तेरा क्या होता है। वो बहू अपने सास ससुर यानी बेटे की माँ
बाप से उसको दूर कर रहा है। मेरे भाव, मेरी माँ और बहनों और मेरे दोस्तों और साथियों, इस हदीस को अपने सामने रखो कि आप रिश्ता तोड़ते हो तो ला यदखुलुल जन्नह, आप जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह से ये दुआ करो कि बारे इलाह तो हमें मिलजुल कर रहने की तौफीक नसीब फरमा और अपने रिश्ते को बरकरार रखने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन तो हमारा हिसाब किताब अच्छे तरीके से कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पुल सिरात से गुजरने वाले हैं, जो हवाओं के साथ गुजरने वाले हैं, जो तेज रफ्तार घोड़े की तरफ गुजरने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें उन लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह तो हमें ऐसे लोगों में से बचा जो उस पुल सिरात पर गिरते पड़ते घसीटते हुए जिनको तकलीफ हो, वो कांटे चुभने वाले हैं, अल्लाह तो हमें उससे महफूज रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गफ्फार है, गफूर है, रहमान है, रहीम है। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को पानी से धो दे, बर्फ से धो दे, ओले से धो दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने से लावलद हैं, अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने से दीर हैं, जो बेदीन हैं, अल्लाह जो दीन से दूर हैं, उन्हें दीन से कुर्बत की कोई तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दीन से करीब कर दे। अल्लाह जो नबी नमाजी है, अल्लाह उन्हें नमाजी बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क के ऊपर जो मुसीबत और परेशानी है, अल्लाह उसको दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मकरूज है हमने से, अल्लाह उनके कर्ज की कोई सबील पैदा कर दे। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने से जो लोग